صلی اللہ محمد علیہ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إن لله وإنا إليه راجعون. مومنین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کی صبح، یوم عاشور، یوم قیامت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، حسین کا آخری دن. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. تاریخ انسانیت نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. مہر نبوت کا سوار بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا. زہرا کے دل کا چین، سیدہ کے جگر کا ٹکڑا، وہ حسین جس کا ایک بال ٹوٹتا تو ماں ساری رات نہ سوتی، اس کی زلفیں قاتل کے ہاتھ میں تھی. وہ حسین جس نے اپنے ایک اشارے سے راہب کو 7 بیٹے دیے، وہ اکبر کو دفنا چکا. وہ حسین جس نے سجدے میں نانے کی پشت پہ آیا تو رسول کو سجدے کو طول دینا پڑا، اس کا سر سجدے سے قاتل نے اٹھا لیا. وہ حسین جسے علی کی بیٹی نے مدینے سے صدقہ دے کے نکالا تھا، وہی حسین 10 محرم بوقت عصر اپنی بہن کے خیمے کے باہر آ کے کہتا السلام علیکہ یا زینب یا کلثوم یا رقیۃ علیکن منی سلام. اے علی کی بیٹیوں، حسین کا آخری سلام. اندر سے آواز آئی ساری زندگی بہن کو خیمے میں آ کے ملا، آج دروازے سے سلام کیوں کیا ہے؟ رو کے آواز آئی جس حال میں ہوں اگر اس حال میں آیا یا بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی. جو ہی شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کریم کربلا کی حالت کیا ہے. سر پہ امامہ کوئی نہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، اس لباس پہ کہیں اکبر کا خون، کہیں قاسم کا خون، کہیں اصغر کا خون. امام حسین علیہ السلام کی داڑھی ریت سے بھری، داڑھی خون سے بھری، اور پیشانی میں ایک تیر لگا ہوا تھا. حسین کی آواز آئی عالیہ میری پیشانی میں تیر ہے. بی بی رو کے کہتی حسین خیمے آ، تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، تو نے عباس کے آنکھ سے تیر نکالا، تو نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا. آ خیمے میں بہن تیری پیشانی سے تیر نکالا. حسین رو کے کہتے عالیہ تجھے کیا خبر کہ تیر کیسے نکالتے ہیں؟ تڑپ کے کہتی ہے حسین تجھے یاد نہیں جب میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے تھے؟ میں کائنات کی پہلی بہن ہوں، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالا، دوسرے کی پیشانی سے تیر نکالا. امام حسین علیہ السلام کی آواز ہے عالیہ مجھے کوئی پرانا لباس دے. رو کے کہتی تیرے کپڑے جنت سے آئے تھے، لباس پرانا کیوں مانگ رہا ہے؟ کریم کربلا یہ چاہتے تھے میری لاش لوٹنے کے لیے اگر ملاؤن آئے لباس پرانا سمجھ کے میرا لباس چھوڑ دے. حسین علیہ السلام نے بہنوں سے وداع کیا، بیٹی کا آخری وداع. بیٹی کو اپنی گود میں لیا، ہاتھ اٹھا کے کہتا میرے اللہ میں نے تہجد کی نمازوں میں سکینہ مانگی تھی، میرے اللہ یہ بیٹی میرے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی، میرے اللہ حسین دعا کر رہا ہے میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے.
इधर शहजादी की आंखें बंद हुई। हुसैन ने अपने हाथों से शहजादी का सर उठाया, करबला की रेत पे सकीना का सर रखा, माथा चूम के कहा, अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले, अच्छा सकीना मौला के हवाले। आलिया का पेशानी चूमी, शहजादी ने भाई की गर्दन का बोसा दिया। हुसैन रो के कहते, आलिया घबराना ना, मेरा इम्तिहान खत्म, तेरा शुरू। आलिया शाम के बाजारों में तन्हानी होगी, मैं नेज़े की नोक पे तेरे खुतबे सुनूंगा, मैं नेज़े की नोक पे तेरा कलाम सुनूंगा। मेरी बहन तू 70 कदम के फासले पे मेरा सजदा देख, मैं सारे रास्ते नेज़े पे तेरा कलाम सुनूंगा। बहन ने भाई को विदा किया, बेटियों ने बाबे को विदा किया। घोड़े की जीन पे बैठा मोहम्मद का राज दुलारा 9 लाख के सामने आके रो के कहने लगा, तुमने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा, मैं चुप, तुमने मेरा गोद वाला असगर मारा, मैं चुप रहा। मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? 9 लाख से आवाज आई, बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप अली की दुश्मनी में मारने आए। निकली तलवार न्याम से हुसैन की, रो के कहा, अली और वलीउल्लाह के दुश्मनों, ओ मेरे बाबे की विलायत के दुश्मनों। हुसैन जंग करते जा रहे थे, करबला दाद देती जा रही थी। ये कायनात का पहला शरीफ मुजाहिद है जो बेटों की लाशें उठाने के बाद लड़ रहा था, जो भाइयों की लाशें उठाने के बाद लड़ रहा था। मक्तल कहती है कि बिफरे हुए शेर की तरह हुसैन कभी दाएं हमला करते, कभी बाएं हमला करते। हुसैन ने इतने जानदार हमले किए कि करबला की फौजें दौड़ना शुरू हुई। किसी को खबर ही नहीं थी कि अकबर के बाद भी हुसैन लड़ लेगा, अब्बास के बाद भी हुसैन लड़ लेगा। हुसैन रो रो के कह रहे थे, तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमें कमजोर समझा। जब पूरा चटकिल मैदान करबला का खाली हो गया, या हातफ़े गैबी से निदा आई, ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की जानब। हुसैन ने रब की आवाज सुनी, हुसैन ने घोड़े की लजाम में छोड़ दी, हुसैन ने घोड़े की कोच पे अपना सर रख दिया। जो ही हुसैन का मुर्तजिद वापस पलटा, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा। जिस मलाउन के पास कुछ नहीं था वो करबला की गर्म रेत उठाता हुसैन के ऊपर फेंकता। हुसैन अलैहिस्सलाम को पत्थर लगते रहे, भागते घोड़े की जीन से गिर गया मोहम्मद का बेटा। हुसैन अलैहिस्सलाम का गिरना था। किताबें कहती हैं सैयदुल साजिदीन से एक शख्स ने मदीने में पूछ लिया था, मौला बता तेरे बाबा हुसैन के बदन पे जख्म कितने लगे थे? मौला सैयदुल साजिदीन ने अपनी उंगली का इशारा किया अंगूठी की तरफ और रोए, फिर अंगूठी का इशारा किया, फिर रोए। उसने कहा मैंने पूछा हुसैन को जख्म कितने थे? सैयदुल साजिदीन ने अंगूठी उतार के कहा, मेरे बाबा के बदन पे अंगुश्तरी जितनी जगह भी खाली नहीं थी। 4,500 जख्म था जो हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन पे था। जख्मों के अंदर जख्म, फिर जख्मों के अंदर जख्म, तीरों के अंदर तीर, नेजों के अंदर नेजे थे। अगली सतर में पढ़ूंगा सादात से माफी मांगने के लिए। जब हुसैन को कत्ल कर रहे थे ये मलाउन जुमा पढ़ने के लिए आए थे, इनके हाथों में लकड़ी की लाठियां थी। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता, मेरा सलाम मेरे उस मजलूम को जिसको लाठियों से मारा गया, जिसको लकड़ी की लाठियों से मारा गया। मुस्तफा के बेटे को लाठियों से मारा गया, तीरों से मारा गया, तलवारों से मारा गया। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाता है कि कोई ऐसा मैदान जंग का हथियार नहीं था जो करबला में हुसैन पे आजमाया ना गया हो। खंजर हुसैन पे चला, तीर हुसैन पे चला, तलवार हुसैन पे चली, नेजा हुसैन पे चला, ढालों के साथ हुसैन को मारा गया, लकड़ियों के साथ हुसैन को मारा गया। हत्ता कि जिस मलाउन के हाथ में कुछ भी नहीं आता वो गरम रेत उठाता हुसैन के जख्मों पे मलने शुरू कर देता। जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए, सादात हो गए सादात, इधर घोड़े की जीन से हुसैन गिरे, या मुर्तजिज करीब आया, रो के कहने लगा, मौला मर्जी से गिरे हैं या मेरी गलती से गिरे हैं? फरमाया ना तेरी गलती थी ना मेरी मर्जी थी, गिरा दिया नाने की उम्मत ने।
मुर्तजिज ने हुसैन के गिल चक्कर लगाने शुरू किए। मुर्तजिज की आवाज आई, मौला मेरे गले में बाहें डाल, मैं तुझे बहन के खेमे ले जाऊं। हुसैन रो के कहते हैं, इस हालत में बहन मर जाएगी। फरमाया, मौला चढ़ मेरी पुश्त पे, तुझे नजफ बाबे की कब्र पे छोड़ आऊं। आवाज आया, दीन मुकम्मल नहीं होता। रो के कहता, चढ़ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे कब्र मोहम्मद पे छोड़ आऊं। आज चढ़ मेरी जीन पे, मैं तुझे माँ की कब्र पे छोड़ आऊं। हुसैन रो के कहते, बेटों की लाशें छोड़ के कहाँ जाऊं, भतीजों की लाशें छोड़ के कहाँ जाऊं। मुर्तजिज की आवाज है, मौला मैंने तेरी माँ की चादर में जो खाए हैं, मौला मुझे कोई हुक्म कर, मैं तेरा पूरा करूं। हुसैन रो के कहते, ओ मेरा वफादार घोड़ा, ओ मेरा वफादार मुर्तजिज, ओ मेरा बचपन का वफादार। हुसैन ने कहा, अपना सर मेरे करीब कर। मुर्तजिज ने सर करीब किया। हुसैन की आवाज आई, ना नाने की कब्र पे लेके जा, ना बाबे की कब्र पे लेके जा, ना माँ की कब्र पे लेके जा, ना बहन के खेमे लेके जा। अगर एहसान करना चाहता है एहसान कर, मैं तेरे गले में बाहें डालता हूँ, मुझे अकबर की लाश पे ले जा, मुझे मेरा अकबर आखिरी बार दिखा दे, मैं एक बार अकबर का चेहरा देख लूं। खुदा लानत करे, शिमरे मलाउन उंगली पे खंजर को घुमाता हुआ हुसैन के करीब आया। करीम करबला का सर सजदे में था। ये मलाउन सजदे की हालत में हुसैन की पुश्त पे सवार हुआ। मक्तल कहती है, इसने सजदे में से हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाल के हुसैन के सरे मुबारक ऊपर किया। गुलवे मुबारक ऊपर आना था। इस मलाउ ने हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। 4 साल की बेटी खैमे के दरवाजे पे आ गई। रो के कहती, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा करबला का मजलूम बाबा। ज़ियारत नाहिया में मेरा 12वां इमाम कहता, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द मजलूम को जिसे पसे गर्दन सिफा किया गया। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा। अहकाम ज़बिया शरीयत मोहम्मद के अंदर है, जानवर भी ज़िबा करो तो गर्दन के बालाई हिस्से से करो, क्योंकि यहाँ पर एक शाह रग है जिसमें खून है। वो एक रग कटने से इंसान की बदन का लहू चला जाता है, लेकिन यहाँ पर शाह रग नहीं, यहाँ पर गर्दन की हड्डी होती है। मेरा 12वां इमाम कहता है, इन मलौनों ने हुसैन को शाहरग से नहीं, इन्होंने पसे गर्दन हुसैन, इन्होंने कुंद खंजर के साथ हुसैन की गर्दन पे ज़रबें लगानी शुरू की। ये पहली ज़रब लगाता लहू ना आता, दूसरी शर्त ज़रब लगाई लहू ना आया। जब इस मलाउन ने चौथी ज़रब लगाई, हुसैन की गर्दन से खून ना आया। ये मलाउन देख के कहता है, तू तो प्यासा भी है, तू तो मजलूम भी है, इजाज़ इमामत इस्तेमाल कर रहा है, इख्तियार इमामत इस्तेमाल कर रहा है, तेरी गर्दन से लहू क्यों नहीं आ रहा। हुसैन की चीख निकली। रो के कहता, अम्मा फातिमा अपना हाथ उठा ले, ओ मेरी माँ ज़हरा अपना हाथ उठा ले। अम्मा मैं जानू मेरा कातिल जाने। 13 ज़रबों के साथ कातिल ने हुसैन के सर को तन से जुदा किया। 13 ज़रबें लगी हुसैन इब्ने अली की गर्दन पे। जो ही इसने सरे हुसैन को धड़ से जुदा किया, इसने सरे हुसैन को नेज़े की अन्नी पे उठाया। 4 साल की मजलूमा बेटी पीछे चली, रो रो के कहती थी, कत्ल कर लिया है, सर मुझे दे दे। ये देख के कहता, मन अंते तू कौन है। रो के कहती, अना सुकैना बिन्तुल हुसैन, मैं इसी मकतूल की बेटी सकीना हूँ। इस मलाउन के एक हाथ में हुसैन का सर था, इसने दूसरे हाथ से सकीना के चेहरे पे तमाचा मारा। सरे हुसैन से आंसुओं की लड़ी जारी हुई। आवाज आई, हया कर मेरी छोटी फातिमा है, हया कर मेरी छोटी बतूल है। इधर सरे हुसैन तन से जुदा हुआ, जिसमें हुसैन के ऊपर इन मलाउनों ने आके लूटना शुरू किया। एक मलाउन ने हुसैन की अबा उतार ली, एक मलाउन ने हुसैन की कबा उतार ली, एक कमीने ने आके हुसैन के कमरबंद पे हाथ डाला। सैयद की लाश का हाथ उठा, आवाज हुई, हया कर मेरी लाश में मेरी बहनों ने आना है। एक मलाउन कहता है, नाम उसका जमाल है। वो कहता, जब मैं लाशाए हुसैन पे पहुंचा, हुसैन के बदन की हर चीज लूटी जा चुकी थी, सिर्फ हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी। वो कहता, मेरे जहन में ख्याल आया, मदीने का शहजादा, अंगूठी इसकी कीमती होगी। उसने कहा, मैंने जल्दी में अंगूठी उतारना चाहिए, अंगूठी न उतरी, मैंने फिर उतारना चाहिए, फिर न उतरी। वो कहता, मुझे जल्दी थी, मैंने खैमों का माल लूटना था। ये कहता, मैं करबला के रेगिस्तान में दौड़ा, मैं एक पत्थर उठा के लाया, उस पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, अपनी जेब से खंजर निकाल के हुसैन की उंगली पे रख के दूसरे पत्थर से सरब लगाई। एक काले बुरके वाली बीबी की चीख आई, रो के कहती, तुझे अंगूठी चाहिए, मुझे बता, मैं उतार के दे।
थोड़ी देर के बाद बहन भाई की लाश पे आई है। शहजादी को भाई की लाश मक्तल में नजर नहीं आई। रो के कहती है ऐना हुसैन, हुसैन कहाँ है? तेरी बहन तुझे ढूंढने के लिए आई है। आखिर एक टूटे हुए तीरों तलवारों और पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई, अलैया अलैया या बिन्ते मोहम्मद, उतरा घोड़े से, मैं यहाँ हूँ मोहम्मद की बेटी। अब मेरे सर पे कुरान रखो। अली की बेटी का ऊंट बिठाया नहीं गया। अली की बेटी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। शहजादी के हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे। शहजादी जमीन पे गिरी। बीबी जब आई, बीबी ने अपनी कोहनियों से पत्थर हटाए। पत्थर हटाते 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 हुसैन की लाश पे नजर पड़ी। बहन को भाई का सर नजर नहीं आया। रो के कहती ऐना ऐना रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहाँ गया? कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरे सर का न पूछ, मुझे बता ऐन रिदा, ज़ैनब तेरा बुर्का कहाँ चला गया? तेरी चादर कहाँ चली गई? रो के कहती हुसैन तू मारा गया, कातल मेरे खेमे में आ गया। हुसैन जिस नेजे पे तेरा सर था, दूसरे नेजे से मेरी रिदा उतार के ले गया। हुसैन बहन शाम जा रही है। हुसैन करबला तू गया, शाम बहन जा रही है। हुसैन करबला में दीन तूने बचाया, शाम में ज़ैनब तुझे बचाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़मल्लाहु वजूरना वजूरकुम बिमुसाइबिल हुसैन। मेरा मालिक पुरसे कबूल फरमाए, ताज़ियत कबूल फरमाए। सलाम या हुसैन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत औलादिल हुसैन, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत सहाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।